اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، آئے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن راستے سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر۔ اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال کریں۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگ اس سے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی جس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پاک رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گناہگار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی سچی راست بات وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کی سبابت سب سے جو اپنے بھائی بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اسی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم پر رحم کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ ہم خداوند کی مدد سے رائے کریں۔ زبور نمبر 39 نکالیں، اپنے راہ میں راکھی کا رکھا، میں گناہوں کو سور زبان۔ آج کے پیغام کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے۔ زبور نمبر Oh
सैराब करते हैं। और हम इन सारे गीतों ज़बूरों के लिए, उन खातमों के लिए जिन्होंने हमारी ज़ुबान में लिखा, खुदा का शुक्र करते हैं। क्वायर के लिए बड़ी अच्छी खूबसूरत तरीके के साथ ये ज़बूर गाया गया, इसमें बड़ा मैसेज है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। उम्र मेरी है गेट पर छुटे, बहुत छोटी मुख्तर उम्र है। और आखिरी दो आयतें तो बहुत अच्छी हैं। एवं ना दी है बेकरार नई जन्म के दौलत सारी जिहड़ी असीं इकट्ठियां करदे, कौन सामेगा इस पीछे। सो हमें इस दुनिया में अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। चंद अल्फाज में कोई भी खातून दुआ में रहना कर सकती, कोई भी बहन इन गीतों के लिए, ज़बूरों के लिए, क्वायर के लिए, आज के दिन के लिए, सारी कलीसिया और लोगों के लिए जो बैरून मुल्क है। अपना शुक्र अदा करते हैं जितने तेरी हुजूरी में खुदा बाप ना अपना बरकत दे, जो खुदा का आने का इरादा रखते खुदा बाप को सही सलामती लेकर आ कि आज का कलाम खुदा का वो सभी लेने वाले बन जाएं और खुदा अपनी जिंदगियों को उनको सच्चाई के साथ इस्तेमाल करे। और आज अपने बंदा को खुदा साथ चलकर इस्तेमाल कर, वो ना बोले उसमें होके बोलना। आज का कलाम खुदा का हम सभी के लिए बाइस से बरकत हो। ये तो ज़बूरों में हम सबकी मदद करना, वाहिद के साथ होना, इंतजामिया के साथ होना, और खुदा ने जितने साल में बहुत तेरी हुजूरी में चिपके तो ना बना, सबको खुदा ने बरकत देना। वहाँ से उसी के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू। किया करें तो बहुत शुक्रिया अल्फाजों के लिए जो आपने
ख्वाहिश करती हूँ आप मेरे भाई तेरा जिंदगी जैसी नेमत अता की और फिर से अपनी हैदर में लेके आया। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ सारी कलीसिया के लिए, खानदानों के लिए। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि खुदा नए साल में तूने हमें हजार खुशियाँ इनायत की। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। बेशक खुदा उन सोगवार खानदानों को भी याद करती हूँ खुदा, जिन बच्चों की माँ को खुदा तूने अपने पास बुला लिया। खुदा मैं तेरी मिन्नत करती हूँ खुदा, तूने अपनी तसल्ली तशफ़ी इत्मीनान देना जो तेरी तरफ से हो खुदा। मैं मिन्नत करती हूँ आज सारी इबादत में तू हमारा हामी और मददगार होना पाए के लिए भी तेरी शुक्रगुजार हूँ, जो तेरी हमद और सना, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद बड़े जोश और खरोश से करते हैं, क्योंकि वो तेरे प्यारे तेरे खून खरीदे हैं। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। अब तुझसे मिन्नत करती हूँ पास्टर जी के लिए खुदा, तो पादरी साहब को जो कलाम दे खुदा हमारी जिंदगियों के लिए बायस बरकत कलाम हो, और आज हम खाली हाथ ना लौटे बल्कि अपनी झोलियाँ भर के जाएंगे, क्योंकि तेरा कलाम हमारे राह की रोशनी और जिंदगी के लिए चिराग है। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तू हमेशा हमें अपने फजल के नीचे रखता है और हमारी जिंदगियों को अपनी पाक पनाह मुहाफ़ज़त में रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदा, जो कुछ मैंने अपने ईमान से मांगा पाया मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। मांगती हूँ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। सफर नंबर 799 जो बाइबल आपके सामने पड़ी है, 22वां बाब, चैप्टर 22। तसल्ली से निकालें और देखें। मुझे आपको इस हवाले में अपनी तस्वीर नजर आई। हिजकिय्याह नबी का सहीफा 22वां बाब, 6 आयत से 12वीं आयत। कोई खातून जी कोई पढ़ना चाहता है इस हवाले को? चले मिसेज आप पढ़ें। आज का दूसरा वेद, पहला ग्रंथियों 15 बाब 12 से 19 आयत। इस साइड पे किसी ने आकर उठाया था, इस साइड से। चल मिसेज रहमत, आज का दूसरा वेद, पहला ग्रंथियों 15 बाब 12 से 19 आयत। सफा नंबर 166। फिर हम एक गीत गाएंगे, खुदा उनकी मदद सराई करेंगे, और वो गीत होगा 126 गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, ऐ गुनहगार तू समझ ले। ये चीजें सारी पानी है, अनदेखी चीजें अपनी। यीशु आ जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को। 17 से 26 आयत, सफा नंबर 58 जो बाइबल आपके सामने पड़ी जी। और कोई खातून अपना हाथ दिखा सकती है ये वाला पढ़ने के लिए? चले मिसेस समीना, आप दुआ कर लेना, ठीक है? करेंगे तो आप, ठीक है? चल, तीनों हवाले आपके पास है। दोबारा दोहराना चाहता हूँ। हिजकिय्याह नबी का सहीफा 22वां बाब 6 आयत से 12वीं आयत, पहला ग्रंथियों 15वां बाब 12 से 19 आयत, और फिर मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील 6 बाब 17 आयत से 26वीं आयत तक। ये हवाले जरा पढ़ ले, दिल के पास है, जरा खोल के देख लें। तब तक मैं कुछ शादी पुकारे हैं, मेरे आसमानी ज़िला मुक़द्दस पाक तुम बजाय तेरी शफ़क़त करती है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, तू सब कुछ करने की कादिर बाप है। तेरा शुक्र बजाते हैं गुजरे के लिए, सारी नीम का बहुत शुक्र तुम लिए जो दुनिया में मांगे बगैर बख्शी। आप जला अपने मुल्क के लिए सलामती चाहते हैं, हमारे मुल्क में सलामती बख्श दे, हत्ता की दहशत गर्दी, शैतान की खिलाफी, करप्शन, बीमारियाँ तेरे नाम से जाते हैं। जो लोग दहशत गर्दी फैलाते हैं उनको अकल दिलाई दे, खुदा वो तेरे हुक्मों के मुताबिक बस करे, तेरे नाम को इज्जत जलाल दे। खुदा
तेरे बंदा को पेशावर में जो खुदा का तुझ में सो गया, उसके ख़ानदान को सब्र, इत्मीनान और तसल्ली दे। तेरा फजल और हाथ हम सब पर बढ़ा रहे, तू हमारी रहबरी रहनुमाई कर, हम तेरे नाम में बढ़ते जाए, हमारी खताओं गलतियों को बख्श दे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे जनाब यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। कलाम में ये लिखा है, देख इस्राएल की उम्रा के सब जो तुझ में है मकदूर भर खूनरेज़ी पर मुस्तैद थे। तेरे अंदर उन्होंने माँ बाप को हकीर जाना है, तेरे अंदर उन्होंने परदेसियों पर जुल्म किया, तेरे अंदर उन्होंने यतीमों और बेवाओं पर सितम किया है। तूने मेरी पाक चीज़ों को नाचीज़ जाना और मेरे सबूतों को नापाक किया। तेरे अंदर वो लोग हैं जो चुगलखोरी करके खूनरेज़ी करवाते हैं, और तेरे अंदर वो हैं जो बुतों की कुर्बानी से खाते हैं। तेरे अंदर वो हैं जो फिस्क और फजूर करते हैं। तेरे अंदर वो हैं जिन्होंने अपने बाप की नरम शक्नी की। तुझ में उन्होंने उस औरत से जो नापाकी की हालत में थी मुबाशरत की। किसी ने दूसरे की बीवी से बदकारी की, और किसी ने अपनी बहू से बदजाती की, और किसी ने अपनी बहन से अपने बाप की बेटी को तेरे अंदर रुस्वा किया। तेरे अंदर उन्होंने खूनरेज़ी के लिए रिश्वतखोरी की। तूने ब्याज और सूद लिया और जुल्म करके अपने पड़ोसी को लूटा और मुझे फरामोश किया। खुदा फरमाता है, खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास पर आमीन। ये मनाती की जाती है कि वो मुर्द जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुरादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह हैं। क्योंकि हमने खुदा की बाबत एक गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, हालांकि नहीं जलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा है तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हो। अगर हम सिर्फ किसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा नसीब हैं। मुकद्दस के बड़े जाने पर आमीन।
हेरोदेस ने अपने आदमी बेचकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के स्वाद से उसे कैद खाना में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदेस ने उससे ब्याह कर लिया था। और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। बस हेरोदियास ने उसे दुश्मनी रखी और चाहती थी कि उसे कत्ल करवाए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को रासबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। जब इब्ने आदम के स्वभाव से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना चाहना हम सबके लिए बच से बरकत हो। ईमान रखता हूँ एक आत्मा के बाप पर जो आसमान जमीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, औलादों से पेश करता है, अपने बाप से मौजूद है, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौजूद, उसका और बाप का एक ही जवाब है। उसके वसीला से जो चीजें बनी वो हम आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और उसकी कुदरत से एक हमारी मरीज से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और उसके रहत ने हमारे लिए मसलूब भी हुआ, और उसने उसको उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्त के बावजूद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। आप किधर कर बैठा है सब बोले उसके सल्तनत का तमाम जो तब्दीली बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से साबित है। उसकी बाप और बेटे के साथ होती है। वो नबी की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम सिरी कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की रायता जहान की हयात का इंतजार करता हूँ। हम दुआ मांगे, पीछे बेटा अपना दुआ मांगे आप उधरी। तो मुबारक है, तो कदूस है, शुक्रगुजार हूँ प्यारे खुदा। प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। और खुदावन अब जिस हिस्से में दुआ की इबादत में दाखिल होते हैं वो तेरे कलाम में सुनना है।
दुआ करती हूँ हम सबके लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं। खुदा हमारा सारा ध्यान तेरे कलाम की तरफ हो, हमें सुनने वाले कान और जुलाने वाला पैदा फरमा। तेरे बंदा के लिए भी तुझसे बरकत चाहती हूँ, तेरे खानदान के लिए भी खुदा जो कुछ तू हमसे आज फरमाना चाहता है, कहना चाहता है, तो अपने खानदान के वसीला से बोल। और खुदा हम तेरे कलाम को सुनते हैं, उसे कबूल करें। खुदा तू हमारे दिलों की मिट्टी को नरम कर, ताकि जो कलाम का बीज हमारे दिल में बोया जाए वो जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए। सारा जलाल आसमानी खुदा तेरे नाम को मिले, तेरे जिंदा और मुबारक नाम में ये सब कुछ शुक्र करके मांग और पानी। आमीन। जवान बैठक दूसरे महीने में हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इस नए साल में मुझे और आप खानदानों में रहते हुए, जहाँ कहीं काम करते हैं रहते हुए, मैंने और आपने इस नए साल के लिए क्या टारगेट बनाया? तो जो खुदा का कलाम खुदा की बंदी के पास है, मैं दाऊद दूंगा, वो उनका कलाम हमारे साथ शेयर करें, ताकि आज के कलाम की वो बातें मेरे लिए और हम सब के लिए, और जो लोग YouTube के जरिए या लाइव देखते हैं उनके लिए बरकत का सबब है। तो मैडम हम आपको दावत दें में भी और चर्चिस सबकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदा ने आपको सेहत तंदुरुस्ती में अपने घर में खुदा लाया, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज के कलाम के वसीला से ना सिर्फ मैं बल्कि हम सब बरकत पाएंगे और सीखेंगे कि इस दुनिया में अभी जो मुल्की हालात हैं, जो समाजी और माशरती हालात हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल पे हालात हैं, और जो उस वक्त हालात थे, यरूशलेम के हालात जो थे, उनके बारे में जब हम सीखते हैं तो फिर हमें महसूस करता है कि हम कहाँ पे हैं इस वक्त, और उस वक्त के लोग कहाँ पे थे, और आज हम कहाँ पे हैं। तो खुदा के कलाम में इसकी 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत से हमने पढ़ा था, 6ठी से 12वीं आयत तक। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिजकिय्याह के बारे में बताना चाहती हूँ। हिजकिय्याह मजबूत और गहरे ईमान और आला कुव्वत तख्लीक का मालिक था। उसे बहुत सी पोशीदा बातों की खबर रोया के ज़रिए मिल जाती, रोआओं के ज़रिए से, ख्वाब वो देखता, रोया के ज़रिए से वो मिलती थी। उसने बहुत से पैगाम जानदार और शगुफ्ता अलामती अंदाज में दिए, सख्त भी और नरम लहजे से भी। हिजकिय्याह ने बातनी यानी दिल और रूह की असर नौ बहाली और तजदीद की ज़रूरत पर ख़ास जोर दिया, और तकीद से बताया कि हर फर्द अपने गुनाहों का जिम्मेदार है। जो मैं और आप हम नहीं समझते कि जो हमने बात की है, जो हमने गुनाह किया, उसका हम एतराफ़ करें। इसने अपनी उस उम्मीद का भी नुमाया इजहार किया, बल्कि ऐलान किया कि हमारी कौमी ज़िंदगी बहाल होगी। खुदा करे कि मेरी और आपकी भी ना सिर्फ कौमी ज़िंदगी बहाल हो, बल्कि मुल्की ज़िंदगी भी बहाल हो, ख़ानदानी ज़िंदगी भी बहाल हो। ये बहसीयत काहिन और नबी वो का हैकल और पकीज़गी की ज़रूरत में ख़ास दिलचस्पी रखता था। बहसीयत काहिन और नबी हैकल की पकीज़गी का वो ख़ास ख्याल रखता था और उसमें दिलचस्पी लेता था। काश कि आज मैं और आप हम भी खुदा के घर की और उसकी हैकल का एहतराम करें, उसकी पकीज़गी का ख्याल करें। अब हम देखते हैं कि 22वें बाब की पहली आयत में खुदावंद हिजकिय्याह से क्या कहता है। फिर खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। हिजकिय्याह कह रहा है कि खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। आज मैं आपसे कहती हूँ कि आज का कलाम काश मेरे और आपके ऊपर नाज़िल हो, और खुदा मुझसे और आपसे हम कलाम हो। क्या है दमज़ाद, तू क्या तू इल्ज़ाम ना लगाएगा? ये मेरे और आपके साथ भी खुदा सवाल कर रहा है, और हिजकिय्याह से कह रहा है कि उन लोगों से पूछ कि क्या हिजकिय्याह से कि क्या तू मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएगा? क्या तू खूनी शहर को मुल्ज़म ना ठहराएगा? तू इसके सब नफरती काम को ना दिखा और क्या खुदा यूँ फरमाता है, ऐ शहर तू अपने अंदर खून रेजी करता है। हम भी अपने शहर के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर, अपने ख़ानदानों के अंदर हम खून रेजी करते हैं। हम वो बातें कह जाते हैं जो शायद हमें नहीं कहनी चाहिए। तो खुदा हिजकिय्याह से कहता है कि तू इनको बता, ताकि तेरा वक्त आ जाए और तू अपने वास्ते
बुतों को अपने नापाक करने के लिए बनाता है। मैंने और आपने, हमने भी अपने अपने अंदर हमने भी बुत बना रखे हैं। किसी ने दौलत का बुत बना रखा है, किसी ने शोबाजी का बुत बना रखा है, किसी ने अपनी खूबसूरती का बुत बना रखा है, किसी ने अपने बच्चों की जो सरफराजी है उसका बुत बना रखा है। हमने मुख्तलिफ तरह से अपने अंदर जो बुत बनाए हुए हैं, जो हम उनको पूजते हैं। और हम ये जानते हैं कि खुदा ने जब बनी इसराइल को, खुदा उनसे नाराज़ हुआ कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, और बहुत दफ़ा उनसे कहता था कि मैं आपसे नाराज़ हूँ क्योंकि आप बुतों की पूजा करते हो। मैंने आपको मना किया, जिस बात से मैंने मना किया हम बनी इसराइल वही करते थे। मैं और आप आज भी हम उसी तरह करते हैं जिस बात से खुदा हमें मना करता है। अगर खुदा हमें कहता है कि गैर कौमें में शादियाँ नहीं करनी तो हम उसी तरफ जाते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं। अगर हम कहते हैं ये हमारी ज़ात है, ये हमारा रिश्ते में चाचा लगता है, चाची लगती है, खाला लगती है, मासी लगती है, तो हम क्या करते हैं? हमने उन सरहदों को जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर कर दी हुई थी, उन हदों को हमने तोड़ दिया हुआ है। हम अपने बच्चों की तरबियत, अपने ख़ानदान की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं करते। यही वजह है कि जो हालात उस वक्त यरूशलेम में थे, यरूशलेम में ये जराइम थे कि लोग जो है बुत परस्ती को मानते थे, बनाए हुए बुतों को पूजते थे। तो फिर खुदावंद ने हिजकिय्याह को रोया के ज़रिए से बताया कि नहीं, इनको बता कि ये गलत काम कर रहे हैं, ये खून रेजी कर रहे हैं, ये बुतों को मान रहे हैं, उनको बना रहे हैं। तो मेरा और आपका खुदा आज भी हमारे साथ उसी तरह से हम कलाम होता है और उन्हीं बातों से हमें मना करता है। तू उस खून के सबब से जो तूने बहाया मुजरम ठहरा। जाहिर है जब हम गलत काम करेंगे तो हम उसके मुजरम ठहरेंगे। और तो बुतों के बायस जिनको तूने बनाया है नापाक हुआ। जो हम चीज़ों को पूजते हैं तो हम फिर पाक नहीं रहते, हमारा दिल पाक नहीं रहता, क्योंकि हम बुतों को पूजते हैं। तू अपने वक्त को नज़दीक लाता है और अपने याम के खात्मे तक पहुंचा है। इसलिए मैंने तुझे अक़वाम की मलामत का निशाना और ममालिक का ठट्ठा बनाया। बेशक जब हम अपने आइन को, जब अपनी शरीयत को, जब अपने कलाम को, जब अपनी रवायात को हम छोड़ देते हैं तो फिर लोग हम पे ठट्ठा करते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लोग हमें ताना देते हैं। जब हम मसीही हैं तो मैं कहती हूँ खुदा ना करे कि हमारे मसीही जो ईमान में मजबूत हैं वो कभी भी अपने ईमान में डावाडोल ना हो। अपने बच्चों की, अपने नौजवान बेटे और बेटियों की उस राह पे तरबियत करें जिस पर उन्हें जाना है, जिससे वो बूढ़े होकर भी ना मुड़े। जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे बेअरबी का शिकार हैं, दूसरे मज़ाहिब को इख्तियार कर रहे हैं, अपने ईमान में मजबूत नहीं है, तो फिर हम कहते हैं हाँ उसने ऐसे कर लिया, उसने वैसे कर लिया। तब हम बातें करते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा है कि हमने उन बच्चों की तरबियत, उन बेटे और बेटियों की तरबियत क्या खुदा के खौफ में रहकर की है? क्या हमने उन बच्चों को समझाया है कि आप जिस ईमान में पैदा हुए इसी ईमान में आपने मरना है, चाहे हमारे हालात जैसे भी क्यों ना हो, गुर्बत हो, पैसा कम हो, लेकिन आपका ईमान जो है वो नहीं बिकना चाहिए। आपका ईमान जो है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। अगर हम ज़िंदगी का ताज लेना चाहते हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुशहाली देखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान बेटे और बेटियां अपने ईमान में मजबूत रहें, वो किसी की दौलत को ना देखें, वो किसी के बंगले को ना देखें, वो किसी की गाड़ियों कारों को ना देखें, बल्कि अपने ईमान में मजबूत रहें, ताकि खुदा उन्हें वक्त पर जो सरफराजी देना चाहता है, जो कामयाबी देना चाहता है, खुदा उन्हें सरफराज करता भी है, क्योंकि ये खुदा का वादा है। तुझसे दूर और नज़दीक के सब लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे। हाँ, लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं जब हम गलत कामों में फंस जाते हैं, जब हम गलत कामों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि तू फसादी और बदनाम शुरू हुआ। हाँ, हम भी आज हमारे इर्द गिर्द क्या है, नशा कितना है। और आपने कभी सोचा है कि जहाँ पर ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहाँ पर नशा क्यों ज़्यादा है? कभी आपने सोचा है? नहीं, किसी ने नहीं सोचा होगा। बस ये है ठीक है, उसका बेटा नशा करता है तो करता रहे, वो खानदान उससे तबाह हो रहा तो होता रहे। लेकिन आपको पता है गैर कौमें हमारा तमाशा देखती हैं, गैर कौमें हमें तरक्की करना देना नहीं चाहती।
وہ نہیں چاہتی کہ کرسچن کمیونٹی ہمارے لوگ آگے بڑھیں. وہ مذاق اڑاتے ہیں اور وہی چیزیں فراہم کرتے ہیں جو ہمارے بچوں کو تباہ کر رہی ہیں. تو یہاں پہ آپ کیا لکھا ہے کہ وہ ہماری ہنسی اڑاتے ہیں, ہمیں ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں, ہمیں مذاق کرتے ہوں گے. اور آج آپ غیر قوموں کو دیکھیں, چھوٹا بچہ بھی آپ جائیں گے دکانداری کتنی اچھے طریقے سے وہ کرتا ہے. ریڑھی اگر اس نے لگائی ہے تو وہ ریڑھی اپنی اتنی اچھی چلاتا ہے. ہمارے لوگ, ہمارے بچے کیوں اتنے آوارہ ہیں, ہمارے بچے کیوں اتنے نشے پہ لگے ہوئے ہیں؟ تو غیر قومیں ہمارا مذاق اڑاتی ہیں, خوش ہوتی ہیں تاکہ ہم ترقی نہ کریں. آپ لوگوں سے درخواست ہے, خاص کر ماؤں سے, کیونکہ ماؤں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. باپ نے باہر سے کما کر لانا ہوتا ہے, لیکن ماں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے. اپنے بچوں کی تربیت اس طور سے کریں, اس میں خدا کے کلام کی باتیں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے وقت ان کو آپ کرتے رہیں. کسی دن تو خدا کے کلام کو مانے گا, اس کے آگے جھکے گا, اسے سجدہ کرے گا, تاکہ ہم اس ہنسی سے, اس مزاح سے بچ سکیں جو لوگ ہم پر کرتے ہیں. دیکھ اسرائیل کے امراؤ سب کے سب تجھ میں ہیں, مقدور بار خون ریزی پر مستعد تھے. وہ بھی خون ریزی, بنی اسرائیل بھی ایسے ہی لوگ تھے. یہ نہیں کہ وہ بنی اسرائیل پاک لوگ تھے تو ان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی, ان میں بھی گناہ پایا جاتا تھا. اور آگے جو فہرست دی گئی ہے اتنی لمبی چوڑی کہ کیا کیا گناہ ان میں تھے. اور اس وقت کے حالات کو اور آج کے حالات کو آپ نے موازنہ کرنا ہے کہ کیا وہ حالات فرق تھے یا آج کے حالات فرق ہیں. بنی اسرائیل کہاں تھے اور ہم کہاں پہ ہیں تو ہم بھی انسان, وہ بھی انسان تھے. خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے, لیکن جو باتیں ان میں پائی جاتی تھی کیا وہ ہم میں بھی پائی جاتی ہیں؟ یا وہ باتیں سن کر ہم نے کبھی عمل کیا ہے کہ اگر وہ باتیں ان میں غلط تھیں تو نہیں, ہمیں ان سے کنارہ کشی کرنا ہے, ہمیں اس سے دور رہنا ہے. دیکھ اسرائیل کے سب امراض سب کے سب تجھ میں ہیں, مقدور بار خون ریزی پر مستعد تھے. تیرے اندر انہوں نے ماں کو حقیر جانا, تیرے اندر انہوں نے ماں کو حقیر جانا. آج میں اور آپ, ہم اپنی ماں کی کتنی عزت کرتے ہیں, اپنی ماں کو کتنی عزت دیتے ہیں. ہم اپنے بزرگوں کا, اپنے بڑوں کو کتنی عزت دیتے ہیں. ماں کو کیا گھر میں اپنے کام کرنے کے لیے رکھا ہے, روٹ ڈالنے کے لیے رکھا ہوا ہے, اور جب وہ ماں بزرگ ہو جائے تو اس کو ایک کونے میں ڈالنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اس وقت بھی بنی اسرائیل میں بھی, یروشلم کے لوگ بھی اسی طرح بزرگوں کو کسی کونے میں پھینک دیتے تھے. ہم بھی آج ایسے ہی کرتے ہیں. جب تک ماں چلتی پھرتی ہے, جب تک ماں کے پاس پیسہ ہے, ماں ہمارے کام کرتی ہے, ہماری خواہش پوری کرتی ہے, تب تک ماں اچھی ہے. جب ماں پہ بزرگی کا وقت آتا ہے, جب ان کی عزت کرنے کا وقت آتا ہے, تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا, ہمارے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا. تو اس وقت بھی لوگ اپنی ماں کو حقیر جانتے تھے. آج بھی ایسا ہی. اس وقت کے حالات کو دیکھیں اور آپ خود بھی دیکھیں. ہم بھی لوگوں میں پھرتے ہیں, آپ بھی لوگوں میں جاتے ہیں, رشتہ داروں میں جاتے ہیں, معاشرے میں جاتے ہیں, سوسائٹی میں جاتے ہیں, کلیسیوں میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری بزرگ ماؤں کا حال ہے, کس طرح سے ہماری بزرگ مائیں جو ہیں وہ آخری ایام اپنی کتنی مشکل سے کاٹ رہی ہیں, اور وہ پھر بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں خیر مانگتی ہیں. وہی بچے جن کی مائیں ان کے لیے دعائیں خیر مانگتی ہیں, وہ اپنی ماں کو حقیر جانتے ہیں. تیرے اندر انہوں نے پردیسیوں پر ظلم کیا. ہم بھی پردیسیوں پہ, کوئی ضروری نہیں کہ دوسرے ملک سے جو آئے وہی پردیسی ہے, یہاں ہمارے ارد گرد بھی پردیسی ہیں. آگے سنیں, انہوں نے پردیسیوں پر ظلم کیا, تیرے اندر انہوں نے یتیموں اور بیواؤں پر ستم کیا. ہم بھی ایسے کرتے ہیں, بیواؤں اور یتیموں کو ہم ان کا خیال نہیں رکھتے. اگر خدا نے ہمیں وسائل دیے ہیں, اگر خدا نے ہمیں پیسہ دیا ہے, اگر خدا نے ہمیں گھر بار دیا ہے, اچھی نوکری دی ہے, سرفرازی دی ہے, تو ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو بیوائیں ہیں, جو غریب ہیں, جو آپ کی مدد کے طلبگار ہیں, کہ آپ ان کی مدد کریں. ضروری نہیں کہ آپ بہت پیسہ کسی بھی طریقے سے, کپڑوں کے ذریعے سے, خوراک کے ذریعے سے, ان کے پاس بیٹھ کر ان کی دلجوئی کرنے کے وسیلے سے ہم ان پردیسیوں اور بیواؤں کو اور یتیموں کو ہم پوچھ سکتے ہیں. تو نے میری پاک چیزوں کو ناچیز جانا. ہم بھی خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو ناپاک جانتے ہیں, ناچیز جانتے ہیں. میرے سبتوں کو ناپاک کیا. ہم کتنے سبت مانتے ہیں,
हम रवायती लोग हैं, बस हम संडे को आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहा जाए कि आज यूनिटी वीक की इबादत है, या आज हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ रहा है, या हमारे यहाँ कोई आ रहा है स्पीच करने के लिए, चंद लोग होंगे। और बहुत सारी खुदा के कलाम के मुताबिक जो इबादत है हम नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि आपकी दिलचस्पी नहीं होती। अगर मैं और पादरी साहब या कोई और आ जाए, हम दो ही बैठे, हमें पता है कौन कौन सी ईदें मनानी है, किस किस के लिए हमें शुक्रगुजारी करनी है। सिर्फ सब्बत का दिन ही नहीं है हमारे लिए कि सिर्फ सब्बत को ही आना है, दिखाना है सबको कि हम आए हैं। और कई लोग ऐसे ही हैं जो साल के बाद आते हैं, वो साल के बाद अपनी शक्ल दिखाते हैं कि लो मैं आ गया। ये चीज़ें जो हैं ये उस वक्त भी थी और ये अब भी हैं। हम खुदा के सब्तों को नहीं मानते, हम खुदा के उन दिनों को, उन ईदों को, उन शुक्रगुजारियों को उसके हुजूर में नहीं रखते जो हमें माननी चाहिए, उसके कलाम के मुताबिक करनी चाहिए। और मैं बड़ी खुश होती हूँ जब कैथोलिक चर्च में कोई इबादत होती है, उनकी कोई ईद होती है, किसी मुकद्दस की ईद होती है। आज फलां मुकद्दस की ईद है, फलां मुकद्दस की ईद है, चर्च भरा होता है। हमारे चर्च में लोगों ने खाने के लिए भी दे दो, पीने के लिए भी दे दो, फिर भी मैं फिर कहती हूँ कि हमें खाना नहीं आता। कम से कम आप इबादत के लिए नहीं आए, खाने के लिए आ गए। तो हम ऐसा भी नहीं करते। हम खुदा को बिल्कुल एक तरफ रख दिया है। हम कहते हैं बस संडे को हम गए थे ना, काफ़ी है, संडे को हमने कलाम सुना था वो काफ़ी है, हमारी ज़िंदगी उसी से तब्दील होगी। तो फिर हम क्यों अपने बच्चों से ये गिला करें कि वो क्यों बुरी राह पे जा रहे हैं, वो क्यों नशा कर रहे हैं। पहले ये होता था, फैमिली के लोग आते थे, पूरे घर वाले आते थे, एक बेंच पे बैठते थे, और जब कलाम हो रहा था तो माँ और बाप कहते थे देखो ये कलाम क्या हो रहा है, ये कलाम क्या हो रहा है। आज हम क्या करते हैं, बच्चे हमारे किसी और चर्च में हैं, लड़की और चर्च में है, लड़का और चर्च में है, माँ बाप किसी और चर्च में है। क्या है हमारी मसीही ज़िंदगी, क्या है। दुख होता है अपने लोगों को, बहुत दुख होता है। शायद या तो हम सुनते नहीं, या हम सुन सुन के सुन हो गए हैं। हम सुनना नहीं चाहते, हम किसी की बात को उस पर गौर ही नहीं करना चाहते। हम चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ईमान में मजबूत हैं। फिर हम गिला करते हैं, फिर हमें दुख होता है, हाय इतनी अच्छी कुड़ी सी वो मुसलमान हो गई, उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया। भाई क्यों ना वो इस्लाम कबूल करती है, आपने उसकी तरबियत की है, आपने अच्छी तरीके से उससे पूछा है, खुदा का कलाम आपने उसको सुनाया है, उसको बताया है कि किस तरह से अपने ईमान में रहना है। उस वक्त भी लोग ऐसे थे तो आज भी ऐसे ही हैं। हम उसके शब्दों को नहीं मानते। तेरे अंदर वो लोग हैं जो चुगलखोरी करके खून करते हैं। चुगलखोरी बहुत है हमारे अंदर, ये आपको मानना पड़ेगा। चुगलखोरी हम करते हैं। खून वो वाला नहीं कि खून जो पानी वाला खून जो है, वो रेड वाला खून जो है वो बहाया जाए। हम अपने रवैयों से दूसरों का खून कर देते हैं, चुगलखोरी करके। कई दफ़ा वो बात किसी ने कही भी नहीं होती, हाँ छोटी सी बात है, वो आप अपने स्टाइल से बना के किसी और को जब बताएंगे। चुगलखोरी जब आप करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और उस आदमी जिसके लिए आपने वो बात कही है उसको कितना दुख होगा, वो अंदर से कितना टूटेगा। तो ये खून ही आप उसका करते हैं ना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसे कत्ल करके उसका खून करें। अपने रवैये से, अपनी इस गुफ्तगू से, अपनी इस ज़बान को मीठा रखें। मैं कहती हूँ जहाँ कहीं आपने बोलना हो, आपको बोलने का खुदा टाइम, तो मीठी ज़बान इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मीठी ज़बान है वो हड्डी को तोड़ देती है। और जब हम मीठी ज़बान इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, चुगलखोरी करेंगे, झूठी गवाही देंगे, तो क्या होगा, फिर तो नुकसान ही होगा। फिर हालात ख़राब ही होंगे, बजाय ये कि हालात ठीक हो, फिर हालात ख़राब होंगे। फिर हमारे ख़ानदानी हालात भी जो हैं वो भी हमारे काबू में नहीं रहते। और ख़ास कर आज कल आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारी कलीसिया के बाहर अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी जहाँ पे भी रहती है, आप देखें, आगे देखें कि आगे क्या क्या है। जो फैज़ दी की है, इसकी ने जिनका जिक्र किया है, तेरे अंदर वो लोग हैं जो चुगलखोरी करके खून करवाते हैं, तेरे अंदर वो हैं जो बुतों की कुर्बानी खाते हैं, तेरे अंदर वो हैं जो फुस्को फजूर करते हैं, गुनाह करते हैं, गंदगी करते हैं, तेरे अंदर वो हैं जिन्होंने अपने बाप की हर शिकनी की, तुझ में उन्होंने उस औरत से जो नापाकी की हालत में थी मुबाशरत की, किसी ने दूसरे की बीवी से बदकारी की और किसी ने अपनी बहू से बदजाती की। क्या करते हैं आजकल, इतना दुख होता है। अपनी बीवी पे तो खुश ही नहीं होना ना, दूसरे की बीवी बहुत अच्छी है।
یہ بری لگتی ہیں کہ شاید یہاں سٹیج پہ یہ سامنے یہ باتیں کرنا بری بات ہے، لیکن یہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ کو بتائیں اپنی بیوی کے ساتھ دوسروں کی بیوی پہ نظر ہے۔ تو خدا کے وہ 10 حکم جو ہے اس نے کیا لکھا ہے؟ اپنی پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ تو ہم اپنے پڑوسی کی بیوی کا ہی لالچ کرتے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ ایسے ہے، اور میں بھائیوں سے معذرت چاہتی ہوں، جو اب بھی ہمارا معاشرہ جس عروج پہ پہنچا ہوا ہے، جس بدی کی طرف عروج پہ جا رہی ہے، کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی بیوی سے ناخوش ہیں۔ ایک بندے نے 2 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ ان کو شاید بانی بھی نہیں دینا چاہیے، ان کو پلپٹ پہ نہیں آنا چاہیے، لیکن کیا کریں؟ ہماری بڑی مشکل ہے۔ ہم اپنے بچوں کو منع نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کو منع نہیں کرتے، اس بندے کو منع نہیں کر سکتے۔ 2 بیویاں رکھی ہیں، زندہ سلامت ہیں، اور ایسی شان و شوکت سے چلتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں۔ 2 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، 3 رکھی ہوئی ہیں، ایک پہ گزارا ہی نہیں۔ تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے ایک انسان کے لیے ایک ہی روح کو بنایا تھا، بہت ساری کو نہیں بنایا تھا۔ اگر خدا کو یہ پسند ہوتا تو خدا ایک ہی بندے کو 3 4 5 بیویاں دے دیتا، لیکن خدا نے کہا نہیں، صرف ایک بندے کے لیے ایک ہی روح۔ اس نے ارواح نہیں بنایا، اس نے روح کا وہاں پہ ذکر کیا ہے، ارواح نہیں بنایا، اس نے ایک ہی روح کو پیدا کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ پھر ہم رشتوں کی کوئی پہچان نہیں ہے، چاچا ہے، ماما ہے، پھوپھی ہے، آگے کیا ہے؟ دوسروں کی بیوی سے بدکاری کی، اور کسی نے اپنی بہو سے بد ذاتی کی۔ آپ بھی ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں، یہ ہماری سوسائٹی ہو یا دوسری سوسائٹی ہو، غیر کرسچن ہو، بد ذاتی کی، اور کسی نے اپنی بہن اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے اندر رسوا کیا۔ آئے دن اخباروں میں، آئے دن خبروں میں، آئے دن فیس بک پہ اتنی بہودہ خبریں لگی ہوتی ہیں، اتنے بہودہ رشتوں کے بارے میں بتایا گیا، جو پاک، جو مقدس خوبصورت رشتے ہیں، ان کو کس طرح سے ہم رسوا کرتے ہیں۔ ماما، پھوپھی، نانی، چاچی، یہ مقدس رشتے ہیں، پاک رشتے ہیں۔ اگر ان کو ہم پاک رکھیں تو یہ پاک رہ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں بدفعلی کی جو روح ہے وہ دوڑ رہی ہے، ہم کم عقل ہیں، خدا کے کلام کو اپنے دل میں نہیں رہتے، اس کا خوف نہیں مانتے، تو پھر یہ ساری جو برائیاں جو بنی اسرائیل میں تھی، جو یروشلم میں تھی، وہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی، ہماری سوسائٹی میں بھی، ہمارے لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو آج میں آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں، خدا نہ کرے کہ ہم ان بری روشوں کی طرف بڑھیں، بلکہ اپنی روشوں پر غور کریں، خدا کے کلام کو مانیں۔ اپنی بہن اپنے باپ کی بیٹی کو تیرے اندر رسوا کیا، تیرے اندر انہوں نے خون ریزی کے لیے رشوت خوری کی، تو نے بیاج اور سود لیا۔ ہاں، مظلوم لوگ جو بیچارے بے بس ہوتے ہیں، جن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کسی سے اگر پیسہ ادھار لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں سود بھی لوں گا، بیاج بھی لوں گا، وہ ظلم کر کے اپنے پڑوسی کو لوٹتے ہیں، اور مجھے فراموش کیا۔ خدا کہتا ہے کہ مجھے فراموش کر، یہ سارے اتنے گناہ، اتنی باتیں کر کے، اتنی برائیاں کر کے، پھر آپ مجھے رسوا کرتے ہو، مجھے فراموش کرتے ہو، مجھے رد کرتے ہو۔ خداوند خدا فرماتا ہے کاش کہ میں اور آپ ہم اپنے خداوند خدا کو فراموش نہ کریں، اسے بھولیں نہ، بلکہ ہمیشہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ 13ویں آیت میں ویسے پڑھنا چاہتی ہوں، تیرے نفع کے سبب سے تو نے لیا، اور تیری خون ریزی کے باعث جو تیرے اندر ہوئی میں نے تعلیم بجائی۔ خدا پھر خوش ہوتا ہے، ہاں میں ان کو دیکھوں کیسے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، جو میں نے انہیں منع کیا وہی کرتے ہیں، خون ریزی کے باعث میں نے ان کے لیے تعلیم بجائی، کیا تیرا دل برداشت کرے گا؟ خدا حزقیل کو کہہ رہا ہے کیا تیرا دل برداشت کرے گا؟ اور میں آج صبح آپ لوگوں سے کہتی ہوں، کیا آپ برداشت کریں گے؟ تیرے ہاتھوں میں زور ہوگا جب میں تیرا معاملہ فصیل کروں گا، جب میں تیرا فیصلہ کروں گا۔ میں خداوند نے فرمایا اور میں ہی کر دکھاؤں گا، اور خدا کر دکھائے گا۔ وہ دن دور نہیں ہے جب میرا اور آپ کی زندگی کا فیصلہ خدا کرے گا۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں، اچھے کاموں کا اچھا اجر ہمیں ملے گا، اگر برے کام کیے ہیں تو برا ہی اجر ہمیں ملے گا۔ خدا ہمارا فیصلہ کرے گا۔ میں خداوند نے فرمایا میں ہی کر دکھاؤں گا،
हाँ मैं तुझे कौमों में परागंदा और मुल्कों में तितर बितर करूँगा। बनी इसराइल का हाल ये होगा, खुदा ना करे कि मैं और आप अपने वतन से, अपने घर से हम तितर बितर किए जाएं, अपने घर से हम निकाले जाएं, अपनी सोसाइटी से हम निकाले जाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने घर से जो दूर लोग रहते हैं उनसे पूछें, जो परदेसी हैं, जो पढ़ने के लिए भी बचे गए हैं उनका भी हाल पूछें कि अपने घर की क्या बात होती है। तो खुदा ना करे कि खुदा हमें कभी अपनी हजूरी से तितर बितर करे, बल्कि हम खुदा के आइन को, उसकी शरीयत को हमेशा अपने दिल में रखें ताकि हम उसके खिलाफ गुनाह ना करें। हाँ मैं तुझको कौम परागंदा और मुल्कों में तितर बितर करूँगा और तेरी गंदगी तुझसे नाबूद कर दूँगा और तू कौमों के सामने अपने आप में नापाक ठहरेगा और मालूम करेगा कि मैं खुदा हूँ। अगर हम ये सारी बातें जो ऊपर सारी लिस्ट दी गई है अगर हम उन्हें नहीं छोड़ते तो खुदा कहता है कि मैं तुझे फिर नापाक ही ठहराऊँगा, तुझे तितर बितर करूँगा क्योंकि मैं तेरा खुदा, क्योंकि वो खुदावंद बस सब कुछ कर सकता है, क्योंकि खुदावंद बड़ा खुदावंद है। वो हमारी तमाम बदियों से, हमारी तमाम नादानियों से, बेवकूफ़ियों से, हमारे गुनाहों से वो वाकिफ़ है। तो जिस तरह बनी इसराइल खुदा के हुजूर गुनाह करते थे हम भी आज ऐसे करते हैं। खुदा ना करे कि हम इस तरह के गुनाहों में हमेशा ही शामिल रहें या करते रहें, बल्कि जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी, कदमों के लिए चिराग है। मैं कहती हूँ खुदा के कलाम को पढ़ें, इसमें से हमें अपनी सूरत नज़र आती है, इसमें से हमें अपना आप नज़र आता है। और जहाँ कहीं खामी हो, जहाँ कहीं हमने कोई ऐसी बात की हो तो जो कलाम को समझने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो देखते हैं हाँ खुदा का कलाम मुझे समझाता है, मुझे आगाही देता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं अपने आप को ठीक करूँ। खुदा करे कि इस कलाम के वसीले से आप सबको और मुझे खुदा ऐसा करने की तौफीक दे कि हम उसके आइन को, उसकी शरीयत को अपने मुँह से हरगिज़ न हटने दें। सुबह शाम हम इसी का ध्यान रखें और हम अपने बच्चों की, अपने ख़ानदानों की, अपने बड़ों की, हाँ ज़रूरी नहीं, खुदा के कलाम में लिखे कि ज़रूरी नहीं कि बड़े जो हैं वो अक्लमंदी की बात करते हैं, कई दफ़ा हमें छोटे बच्चों से भी हम अक्ल की बात सीखते हैं, तो इसलिए हमें छोटे बच्चों की भी बात सुननी चाहिए और अपनी सोसाइटी को इसके लिए खुदा से दुआ करें जो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और मुझे नज़र नहीं आता कि हम कहाँ पे जाके खड़े होंगे, क्योंकि हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी, हमारे ख़ानदानों में और हमारी कलीसिया में इतने सारे ख़ानदान हैं जो बुरी तरह से फेल हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? हमारी बदकिरदारी की वजह से, हमारी बदफेली की वजह से, हमारी नाइंसाफ़ी की वजह से, हमारी खुदा से दूरी की वजह से। खुदा ना करे कि हम खुदा से दूर रहें, खुदा हमें फरामोश कर दे, खुदा हमें रद्द कर दे, बल्कि हम हमेशा उसका शुक्र करें और उससे दुआ करें कि खुदा तुम मुझे तितर बितर न करना, मेरा ध्यान ज्ञान तेरे घर की तरफ, तेरी हैकल की तरफ मैं जब आऊँ, मेरे तमाम गुनाहों, खताओं और कसूरों को माफ़ कर, मेरे ख़ानदान को, मेरी कलीसिया को, सेंट जॉन्स की कलीसिया को तो दिन रात दुगनी तरक्की दे ताकि वो तेरे पाकलाम में बढ़ते जाएं और ना सिर्फ संडे को ही हम आएँ बल्कि हमेशा जब भी कुछ शुक्रगुजारी की इबादत होती है दिल खोल कर खुशी के साथ खुदा के हुजूर में आएँ, क्योंकि जब हम सुनते नहीं हैं फिर हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। दुआ करें कि हम अपने बच्चों की तरबियत उसके खौफ में रह कर करें। इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत। थैंक यू वेरी मच। आमीन। मेरे और आज ऐसा हो रहा है। अब देख रहे हैं कि हमने इन सारी बातों को सुन के, मैं तो बड़े सब्र से सुन रहा था लेकिन मैंने टाइम देखा काफ़ी हो गया, लेकिन ये अंदर की दिल की बातें थी। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मुश्किल है तो दिल जला के सरे आम रखते हैं। वो बातें मैं भी यहाँ से इस तरह कर सकता जो उन्होंने कर दी, और ये ज़रूरी बात है, चैलेंज है हमारे लिए। इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करें और गाएं जो धन जिसने बख्शे गए सब गुना, ढके गए सारे औकल सब। अगर मेरे आपके गुनाह ढांप दिए जाए जो बड़ी इसराइल करता था
उनके लोग करते थे, इसलिए फिर खुदा का गज़ब उन पे पड़ता। और आज भी खुदा का गज़ब है हमारी इस दुनिया में, हमारे मुल्क में, हमारे एरिया में। ज़बूर नंबर 32 निकालें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदिये नजरानी शुक्रगुजारी आज सुबह तेरे हुजूर गुजारे। अपना हाथ बढ़ाए सारे हदियों की हम सबकी भी तकदीस कर, हम सबको इन हदियों को अपने हुजूर कबूल फरमा।
देने वालों को बरकत दे, इनके हाथों की कमाई में बरकत दे, इनकी रोटी पानी में बरकत डाल। हमारी शुक्रगुजारी रसूल खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमाई बैठ से तुम्हारे साथ हो। अपने दिल में माला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप कादिर मुतकब्बिर अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, डायस ऑफ रायगढ़ के लिए, बिशप ऑफ रायगढ़ के लिए, सेंट जॉन चर्च के लिए, सारी कलीसिया के लिए। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों को आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हमदो ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सदाइश करते हैं। आसमान और ज़मीन भी तेरे जलाल से ममनून है। आए खुदावंद ताला तेरा ही जलाल मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है, आने वाला भी है, आने वाला पर होशा वाकई कुदूस वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए इसलिए पर मौत गवारा करे। उसने इस बार अपने आप को एक ही बार नजर झुका कर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेघर लोगों पर रहम कर, हम सब पर, पूरी कलीसिया पर, आलमगीर कलीसिया पर, इस दुनिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं करना हूँ तो वैसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा तुम सब इसमें से पियो क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर भी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ आज हमें दे पर हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरों को माफ़ करते हैं और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही और कुदरत जलाल हमेशा तक दे रही हैं। आए हम सब मिलकर खुदा के मेज़ के पास आने की दुआ करें और कहें, ऐ रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसराइल की खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस वक्त से खाएं और उसका खून इस मज़ा से पिएं कि हमारी गुनाह की समझ रहे, उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें तो हमें हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को आगे हाथ बढ़ाकर बरकत की दुआ दें, एक दूसरे के लिए इत्मीनान मांगें ताकि इस दुनिया में हमारे खानदानों में इत्मीनान आए। हम खुदा के खादिम होते हुए ईमान से मसीह के बदन और साक्रमेंट में शरीक हुए हैं, तो आए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी करते हुए कहें, कादिर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है,
اور ہمیں اس کے نہایت پیش قیمت بدن اور خون کی روحانی خوراک سے سیر کیا ہے اور ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ ہم ان بخششوں کے لیے جو بیان سے باہر ہیں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے روح اور اپنے جسم سمیت تیرے حضور نظر گزرانتے ہیں تاکہ پاک اور زندہ قربانی ہو جو ہماری مقبول عبادت ہے۔ ہمیں فضل بخش تاکہ ہم نشان کے ہم شکل نہ بنے بلکہ عقل کو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں اور یوں تیری نیک اور کامل مرضی سیکھیں اور اس جان میں اسی طرح تیری فرمانبرداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بادشاہی میں تیرے سب مقدس میں خوشی منائیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ واحد خدا عبدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ ہم اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی، آمین۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور خدا باپ بیٹے اور اس کی برکت ہم سب پر اور ہم سب کے تمام عزیز و کارب رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، مسائل خدا کے خادموں کے ساتھ، گرددہ خاندانوں کے ساتھ، بیمار لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے